نیکسٹ ٹاپک ہے جی ایکسٹرنل چیسٹ کمپریشن، یعنی کہ کیسے سانس کو بحال کرنے کا ایک پروسیجر ہے چھاتی پر بیرونی دباؤ ڈالنا. کہ اگر منہ سے منہ لگا کر سانس دینے کا عمل اور دل کی دھڑکن دوبارہ شروع نہیں ہو پا رہی، پیشنٹ ابھی تک مدہوش ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، سانس بھی نہیں لے رہا اور دل کی دھڑکن بھی رک گئی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ مریض کو اس کی چیسٹ پر بیرونی دباؤ ڈال کر اور اس کے ساتھ ساتھ سانس دینے کا عمل بھی جاری رکھنا ہے، کیونکہ جب تک دل کی دھڑکن نہیں ہوگی تب تک جو ہمارا آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ پوری باڈی تک نہیں پہنچے گا. نہ پہلے خون جو ہے وہ دل تک پہنچے گا اور دل سے وہاں سے پھر پوری باڈی تک پہنچے گا. اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل چیسٹ کمپریشن، یعنی کہ چیسٹ کو پریس کرنا باہر بیرونی طرف. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو سخت جگہ پر پیٹ کے بل لٹانا، یعنی کہ جیسے الٹا لٹایا جاتا ہے. یہ آپ ڈائیگرام یہ تو خیر دیکھ لیں، یہ لیٹا ہوا ہے بندہ، ٹھیک ہے، سیدھے جیسے پیٹ کے نہیں پیٹھ کے بل، یعنی کہ سیدھا لٹانا ہے، اس کا منہ آسمان کی طرف ہو اور آپ اس کی چھاتی کے پاس دل کی جانب دو جانب بیٹھیں، جیسے کہ نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اس کے دل کے پاس اس کی چیسٹ کی سائڈ پر. اس طرح کرنا ہے کہ اس کی چھاتی کی درمیانی ہڈی کے نچلے حصے پر، نچلے آدھے حصے پر، یعنی کہ بالکل جو سینٹر کی جو ہڈی ہے، درمیانی ہڈی ہے، اس کے نچلے آدھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل گلے کے پاس نہیں بلکہ نیچے پیٹ کے درمیان کے حصے پر اپنی ہتھیلی کا پچھلا حصہ اس طرح سے رکھ دیں کہ انگلیاں پسلیوں سے نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پسلیوں کو پریس نہیں کرنا، پسلیوں کے اوپر زور نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ پسلیوں کو چھوئے بغیر ایک حصہ اس کی ہڈی کے نیچے جو درمیانی ہڈی ہے اس کے آدھے حصے کے نچلے حصے پر اپنی ہتھیلی رکھ دیں. پھر اپنا دوسرا ہاتھ اس ہاتھ پر رکھتے ہوئے، جو ہاتھ یہ دیکھ لیں یہ پسلیوں سے نیچے کی جانب، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ کو اس جگہ پر رکھا، پسلیاں یہاں پر اس سائڈ پر ہوتی ہیں، سائڈز پر، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ یہاں رکھا، پھر دوسرا اپنا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ کے اوپر رکھ کر انگلیوں میں پھنسا لیں، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے بیٹھنا ہے ایک سائڈ پر پیشنٹ کی، ٹھیک، پھر اپنا ایک ہاتھ درمیانی ہڈی جو کہ دونوں ہمارے جو چیسٹ کے بالکل سینٹر میں ہڈی ہے اس کے نچلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھیں، اسی کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھیں، انگلیوں کے درمیان انگلیاں پھنسا لیں اور بازو سیدھے رکھتے ہوئے اپنے جسم کو اتنا آگے لائیں گے بازو عموداً سیدھے ہو جائیں. یہ دیکھیں، یہ اس ڈائیگرام میں یہ منشن پہلے اس میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہے، یعنی کہ جیسے ہم آٹا گھومتے ہوئے، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، ہم آگے کی طرف جھکتے ہیں پھر پیچھے، پھر آگے کی طرف جھکتے ہیں پھر پیچھے. تو یہ دیکھیں، یہ بندہ آگے کی طرف موو کر رہا ہے اور اس کا پریشر نیچے کی طرف پڑ رہا ہے. یہ ہم کر اس لیے رہے ہیں تاکہ جو بندہ بے ہوش ہے، جس کو کسی بھی قسم کا کوئی شوق لگا ہوا ہے، وہ مدہوشی کی حالت میں ہے، سانس نہیں لے رہا، دل کی دھڑکن بھی رک گئی ہے، ہم نے اب اس کی دل کی دھڑکن کو، سانس لینے کے عمل کو جاری کرنا ہے. اور اگر منہ سے سانس بحال نہیں ہو رہا تو اس کو ایکسٹرنل چیسٹ کمپریشن، یعنی کہ بیرونی دباؤ کی ہیلپ سے اس کو سانس لینے کے عمل کو اور دل کی دھڑکن کے عمل کو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اب اس کے لیے کرنا پروسیجر اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ بازو سیدھا رکھ کے اپنے جسم کو آگے لائیں تاکہ بازو ہمارے بالکل عمودی کہتے ہیں، جیسے سیدھی، بالکل ایک کوئی چیز سیدھی 90 ڈگری کے اینگل پر کھڑی ہوتی ہے تو یہ عموداً سیدھے ہو جائیں گے. ایک بالغ انسان، اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچہ بڑا چھوٹا، ظاہر ایج گروپ کے حساب سے پریشر میں فرق ہوگا. اب اگر کوئی بالغ انسان ہے تو اس کی چھاتی پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ اس کی چھاتی کی درمیانی ہڈی 4 سے 5 سینٹی میٹر تک نیچے دب جائے، ٹھیک ہے. اب ایک یہ بالغ انسان کی بات ہو رہی ہے، پھر اس میں پریشر اتنا ڈالنا ہے کہ درمیانی ہڈی 4 سے 5 سینٹی میٹر تک نیچے دب جائے. پھر پیچھے کی جانب اپنے پاؤں پر بیٹھ جائیں تاکہ چھاتی پر سے دباؤ ختم ہو جائے. اب یہ نہیں کرنا کہ کنٹینیوسلی پریشر ایگزرٹ کرتے رہنا ہے، بلکہ ایسے ایک دفعہ پریشر دینا ہے، پھر پیچھے ہٹنا ہے، پھر پریشر دینا ہے، پھر پیچھے ہٹنا ہے. اس طریقے سے یہ عمل 30 دفعہ دہرایا گا. جی آواز آ رہی ہے سب کو میری؟
फातिमा, इरम, माहीन, मानूर। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। अब आप लोग जरा रिपीट करें क्या पढ़ा है अभी तक, जो समझ आई है वो बात बताएं जरा। इरम बोले जरा, क्या बताया अभी तक? उर्दू की बातें जो आपकी ज़हन में नहीं बैठती, समझ नहीं आता क्या। मैम मैंने अभी ज्वाइन की, बड़ी मैंने मेहरबानी ज्वाइन ही नहीं आपकी, हो रही। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने भी ज्वाइन कर दिया। जी माहीन आप बोलें जरा। आवाज आ रही है आपको माहीन? मैम छाती पर बरो यस मैम आ रही है। जी बोले जरा, क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? मैम छाती पर बरूनी दबाओ। मैम मरीज के मुंह के साथ मुंह लगाकर, छाती पर बरूनी दबाओ, मरीज के मुंह के साथ मुंह लगाकर उसे सांस दें। सांस देने का अमल दिल के धड़कने को दोबारा शुरू करने में नाकाम रहे तो इस सूरत में मरीज को छाती पर बरूनी देख के, दबाव के मैंने साथ नहीं, ये नहीं मरीज कहा के मुंह से मुंह लगाकर उसको सांस दें। सांस मोहतरमा, इस वक्त तक बस देख के रीडिंग नहीं करनी। आपको कुछ समझ भी आई है या नहीं आई? मैम आई है। तो फिर खुद से बताया ना, देख के क्यों पढ़ रही हैं? तो फिर देख के बोले ना, देख के ना बताएं, खुद से पढ़ाएं, खुद से बताएं क्या समझ आई आपको। जी नेहा। मैम मरीज को तब तक आप लेटाना चाहिए, उसका मुंह सीधा आसमान की तरफ रखना चाहिए। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? मैम फिर दरमियान वाला हिस्सा होता है वहाँ पे दोनों हाथों से दबाव डालना चाहिए कि दोनों उंगलियां आपस में जुड़ जाए और उसके पसलियों को पुश करना चाहिए। अब ये अमल हमने कितनी दफ़ा? 30 दफ़ा करना है। और इसकी शरह रफ्तार अब यानी कि 1 मिनट में हमने कितनी दफ़ा करना है? 1 मिनट में 80 दफ़ा करना है। ठीक है, सही शरह रफ्तार जानने के लिए गिनती गिनी जाए, मतलब 1 2 3 4। मतलब ऐसे ये नहीं करना कि बहुत तेज़ी से भी नहीं करना और बहुत स्लोली भी नहीं करना, क्योंकि इसका अपना एक मुनासिब काउंट बताया गया है, उसी हिसाब से करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर मरीज़ के सर को पीछे की जानिब कर दें ताकि हवा का रास्ता खुल जाए, और मरीज़ के मुंह से मुंह लगाकर 2 दफ़ा सांस लेने का इरादा करें। मतलब एक दफ़ा तो हमने 1 मिनट में 80 दफ़ा उसकी छाती पर हमने प्रेशर डाला, फिर छोड़ दिया, फिर प्रेशर डाला, फिर छोड़ दिया। इस तरीके से 1 मिनट में 80 दफ़ा हमने यूँ प्रेशर देना है। फिर उसके सर को आप छोड़ ताकि हवा अंदर जाए, और साथ साथ उसके मुंह को भी सांस, मतलब उसके मुंह से मुंह लगाकर सांस भी देना है। फिर उसके बाद छाती पर 30 दफ़ा दबाव डालने का अमल दोहराएं। पहले हमने 80 दफ़ा दिया 1 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, ये अब मैं आपको तरतीब बता रही हूँ कि ये नहीं कि एक पूरा मिनट करते रहना है, मतलब कि जो स्पीड होगी वो 1 मिनट में 80 दफ़ा होगी, लेकिन करना सिर्फ 30 दफ़ा है। ठीक, अब 30 दफ़ा करने के बाद चाहे इस पे हमारा आधा मिनट लग जाए, क्योंकि 1 मिनट में 80 दफ़ा करना है, तो आधे मिनट में यानी कि 30 सेकंड में ये कितना 40 दफ़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपने तकरीबन 25-30 मिनट में ये 30 दफ़ा ये काम करना है। 25-30 सेकंड के बाद फिर सांस लेना है। फिर उसके बाद फिर 2 दफ़ा यानी कि आपने सांस लेने का अमल पहले 2 मिनट के बाद दिल की धड़कन की जांच की जाए। अगर वो फिर भी जारी ना हुई हो तो इन प्रोसेस को जारी रखें।
यानी कि 25-30 सेकंड में उसकी प्रेशर को प्रेशर दें, फिर छोड़ें, फिर प्रेशर दें, फिर छोड़ें। इस तरीके से करते रहना है 30 दफ़ा। फिर मुंह से सांस लेने का अमल जारी रखना है। फिर भी अगर दिल की धड़कन जारी नहीं हुई तो इस दोनों कामों को जारी रखना है। हर 3 मिनट के बाद या दोनों जो भी आप काम करिए, जो काम कर रहे हैं, करने के बाद बारी बारी 12 दफ़ा दोहराने के बाद दिल की धड़कन की जांच की जाए। ठीक है, मतलब एक ज़ाहिर आपको मैंने बताया कि आधे सेकंड में एक काम होगा, फिर आधे सेकंड में नहीं, सॉरी, आधे मिनट में 30 सेकंड में हम उसको प्रेशर देंगे। ठीक है, फिर तकरीबन आधे मिनट में यानी कि 20-30 सेकंड में हम सांस लेने का अमल जारी करेंगे। ये 1 मिनट है, फिर दूसरे मिनट, फिर तीसरे मिनट। तो ये 3 मिनट के बाद तो जो प्रोसेस हुआ, अब आपने जांच पड़ताल करनी है कि क्या पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। जैसे ही दिल धड़कना शुरू कर दे तो छाती पर दबाव डालने का अमल बंद कर, लेकिन मुंह से मुंह लगाकर सांस लेने का अमल जारी रखें जब तक कि ये मामूल का अमल ना बन जाए। इसके बाद मरीज को आरामदेह हालत में रिकवरी पोजीशन में लिटा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। फिर अगला है जी, 2 इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वालों का बाहमी। अगर एक बंदा कर रहा था तो वो मैंने आपको बताया था एक बंदा था। अब जब 2 बंदे कर, ठीक है, अगर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले 2 फर्द हों तो इनमें से एक सांस की नाली को खोलकर मुंह से मुंह लगाकर सांस लेने और दिल की धड़कन की जांच करें। ठीक है, मैं आपको मतलब दोबारा रिपीट करती हूँ। एक बंदा मुंह से मुंह लगाकर सांस लेगा और साथ साथ दिल की धड़कन को फील करेगा। जो दूसरा बंदा होगा वो बैरूनी दबाव डालने की जिम्मेदारी संभाले। अगर इस अमल को लंबे अरसे तक जारी रखने की जरूरत हो तो अमदाद देने वाले वक्फे वक्फे से अपनी जिम्मेदारियां तब्दील करते रहते हैं। इस अमल को मजीद अच्छे तरीके से करने के लिए अगर मुमकिन हो तो एक दूसरे के आमने सामने, मतलब एक बंदा पेशेंट के राइट साइड पर, एक पेशेंट के लेफ्ट साइड पर बैठे। अगर पहला शख्स मरीज के सर की एक तरफ है, दूसरा उसकी छाती के पहलू की जानिब घुटने टेककर बैठ जाता है। सर की तरफ वाला, अब जो बंदा सर के करीब बैठा है, वो मुंह से मुंह लगाकर सांस लेने का अमल 4 दफ़ा करने के बाद दिल की धड़कन की भी जांच है। लेकिन अगर दिल धड़कना शुरू ना करे तो दूसरा शख्स 5 मरतबा छाती पर दबाव डाले। समझ आई बात की? ये एक दफ़ा तो एक बंदे का काम यह है कि हवा का रास्ता खोलना है और दिल की धड़कन की जांच करना। दूसरे बंदे का काम क्या है कि वो छाती पर दबाव डाले। अब इसके बावजूद अगर कोई खास नतीजा बरामद नहीं हो रहा, बंदा ऐसे बेहोश बेसुध पड़ा है, तो दोनों अमाल की, दोनों जो स्टेप्स हो रहे हैं, बारी बारी 1 मिनट में 12 मरतबा की शरह रफ्तार से करते हैं। अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, 1 मिनट में 12 मरतबा। पहले 1 मिनट में 12 मरतबा एक काम किया, फिर दूसरे मिनट में 12 दफ़ा एक काम किया। पहली दफ़ा दिल की धड़कन की जांच 1 मिनट के बाद और फिर हर 3 मिनट के वक्त से करनी चाहिए। ख्याल रहे कि हर 5 मरतबा दबाव डालते वक्त जब हाथ पर दबाव कम हो जाए तो सांस लेने का अमल किया जाए ताकि तसलसल कायम। दोनों काम साइड बाय साइड होने चाहिए। दबाव देने का अमल भी, ठीक है, जब हाथों पर दबाव कम हो रहा है, यानी कि जैसे हम अपनी छाती को फैलने की जगह देखते हैं ना, दबाव कब कर रहे हैं तो छाती बाहर की तरफ आ रही है। अब जब बाहर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अंदर रास्ता खुलना चाहिए, अंदर की तरफ ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो सांस लेने का अमल भी उसी वक्त होना चाहिए ताकि हवा अंदर ऑक्सीजन जा सके। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, ताकि थोड़ा सा आप लोगों की समझ में भी ये चीज़ आती रहे। आज हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़े हैं। एक टॉपिक हमने पढ़ा कि कैसे छाती पर बैरूनी दबाव डाला जा सकता है, एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन है ये, और दूसरा हमने पढ़ा कि कैसे 2 बंदे मिलकर कैसे किसी की दिल की धड़कन, बीमार बंदे की दिल की धड़कन और सांस लेने के अमल को जारी रखवा सकते। ये आप सबने मुझे याद करके लिख कर भेजना है। यही आज आपका टॉपिक है सबका, ठीक है। और जी सायरा तहजीब और शिरादी अजीबा और तहरीन नईम, जिन्होंने अभी तक मुझे कल का टेस्ट नहीं सेंड किया, ठीक है, ये मुझे आज लाजमी पहुंचने चाहिए, वरना ये भी हो सकता है कि ये टेस्ट मैं आपका एक की बजाय मैं 5 दफ़ा कर दूँ। ठीक है, अभी मैं आराम से समझा रही हूँ, मुझे आज इसका उनका आंसर मिलना चाहिए। अदरवाइज़ मैं, अगर आज नहीं आए
कल की डेट में इन्हीं क्वेश्चन आप यही क्वेश्चन आपने एक के बजाय हर एक क्वेश्चन को आपने 5 दफा लिख के मुझे भेजना हो। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात की? यस मैम। जो आज का पढ़ा है वो भी लिखना है और जो कल के क्वेश्चन थे वो भी लिखने हैं सब, जो मतलब जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे। अगर आज नहीं भेजे, मेरी बात समझ आ रही है ना शिदाती और तहरीम और जिन लोगों ने नहीं भेजे मुझे अभी तक, अगर आज नहीं भेजे तो कल की डेट में इन्हीं का नंबर 5 दफा हो जाएगा। ठीक है, और जितना आगे चलता जाएगा ये नंबर बढ़ता जाएगा, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, और ये मैं करवाती भी होती हूँ। ठीक है, ये बात आराम से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल आगे चलेंगे, जो भी अगला हमारा नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है, इसको याद करके और मुझे लिख के भेजना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।